پھر یہاں پر ہے نفس یا نفسی، اس کو نقشبندی زبان میں نفسی بھی کہتے ہیں، نفس لطیفہ یہ یہاں پر. پھر ہے قالبی، یہ 7 لطائف ہیں جو 7 اسباط ہیں نقشبندی سلسلے کے. اب نقشبندی سلسلہ جو ہے نا وہ طے نہیں ہوتا جب تک آپ ان کے اوپر سبق نہ کریں. جب تک آپ ان کے اوپر ذکر نہیں کریں گے نقشبندی سلسلہ نہیں طے ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا. حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نقشبندی سلسلے میں جو جہر ذکر کرتے ہیں نا لوگ، یہ بدعت کرتے ہیں. یہ ارشاد الطالبین غالباً کتاب اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اچھا بدعت کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ کوئی چیز نئی بنائی ہوئی ہے، یعنی پہلے نہیں تھی. مطلب یہ ہے ان کا کہنے کا کہ یہ جو کر رہے ہیں نا، جو جہر ذکر کر رہے ہیں نقشبندی سلسلے والے، یہ پہلے کوئی نہیں تھا، اب کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے چینج کر دیا ان سے پھر معاملہ خراب ہو گیا. نقشبندی میں یہ اسباق ہیں اور ان کے اوپر ہوتی ہے توجہ. ایک بندہ دوسرے کو سامنے بٹھا کے خود بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کو بھی کرواتا ہے، تو جو اس کے سینے میں ہوگا وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جائے گا. صحبت کہتے ہیں، صحبت کا اثر ہے. یہ بھی کافی اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ پھر ہم کریں گے. لیکن پاس بیٹھنے سے بھی بڑا اثر ہوتا ہے. کوئی بندہ بولے نہ بولے، آپ دیکھیں نا، آپ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، کوئی انہوں نے آپ کو بہت زیادہ کچھ کہا ہے کہ ہم نعت پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، فلان کریں گے یہ ہوگا، وہ ایسا کچھ کہا ہے؟ آپ کے تارے مل گئی ہیں، تارے مل گئی ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ ماشاء اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا قلب، جب آپ کسی کے سامنے بیٹھیں گے وہ بھی ذکر کرے گا، آپ بھی ذکر کریں گے، وہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. آہستہ آہستہ سینہ جو ہے وہ منور ہونا شروع ہو جائے گا. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے. شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد جو ہیں وہ پیر بھائی تھے. ان کی ڈیوٹی تھی کہ یہ برتن جو ہے نا سارے بنا کے انہوں نے تو رات کو بٹی میں رکھنے ہوتے تھے. برتن بناتے تھے وہ رات کو بٹی میں رکھتے تھے، صبح تک وہ پک جاتے تھے. تو شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ وہ جب یہ باتیں شروع ہوتی تھی تو وہ لگے رہتے تھے، ٹائم گزر جاتا تھا پتہ کوئی نہیں چلتا. اب پیر بھائی کے ساتھ وہ بیٹھ کے باتیں لگتے کرنے، وہ دین کی باتیں کرتے رہے، رات گزر گئی پتہ ہی کو نہ لگا. جب صبح کا وقت قریب آیا تو پیر بھائی کہتا او وہ تو برتن اندر رکھنے تو میں تو بھول ہی گیا ہوں، اب باتوں میں تو. اب وہ بھی خوف سے جو ہے نا ان کی حالت بڑی غیر، انہوں نے کہا ہے مرشد آگے پتہ چلے گا کہ اس کی قصور ہے سارا، اس نے کیا ہے. اس طرح مرشد ناراض ہوں گے، بڑے جو ہے نا وہ خوفزدہ ہو گئے اس معاملے سے. اور کچھ نہ سوجا، پیر بھائی کو کہتے ہیں ایسے کرو وہ برتن سامنے لاؤ. برتن سامنے رکھ کے نا اللہ کے نام کی ضرب ماری، توجہ کی برتنوں کو، برتن سارے پک گئے. اور وہ پک بھی گئے اور ہر برتن کے اوپر اللہ کا نام کندہ ہو گیا، نقش ہو گیا. تو یہ جو نقش بندی ہے نا اصل میں یہی ہے، اللہ 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 اللہ، یہ نقش بندی یہی ہے کہ ان حضرت شاہ نقش بند نے ہمیں نقش بند کرنا سکھا دیا کہ ایسے بٹھاؤ سامنے ان کو توجہ کرو تو ان کے اندر بھی یہ نعمت ٹرانسفر ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ برتنوں کے اوپر وہ توجہ انہوں نے کی، برتن پاک. اسی طرح ہوتا ہے کہ جو ایک قلب ہے نا وہ دوسرے قلب کے ساتھ جب بیٹھ کے ذکر کرتا ہے تو ایک قلب ذاکر ہے، دوسرا بھی ذاکر ہو جاتا ہے. یہ ہے اس کا معاملہ. ایک تجربے کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں تھوڑا سا یہ کلیئر ہو جائے معاملہ. جرمنی میں یہ غالباً تجربہ ہوا تھا. یہ اس کی ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پہ پڑی ہے. یہ یوٹیوب پہ کوئی بندہ جا کے ریسرچ کرنا چاہے، مجھے اپنی نام نہیں یاد ہوتا، افضال کو شاید پتہ ہوگا، یہ اس طرح کافی کین انٹرسٹ ہے اس کا. وہ کیا کیا انہوں نے کہ رینڈم بندے نا بلا کے، کوئی پتہ نہیں 200-300 کی طرح کافی زیادہ بندے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا ہے اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنا ہے 4 منٹ کے لیے. 4 منٹ کے لیے آپ نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنا ہے. وہ بندوں نے دیکھا اور ان سب کے جو ہے وہ عجیب عجیب تاثرات اور خیالات تھے. کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے کہ آنکھوں کے ساتھ وہ تاریں ملتی ہیں. یہ دل کا معاملہ، یہ اس کو کہتے ہیں یہ روح کی کھڑکی ہے، یہ روح کی کھڑکی ہے آنکھیں.
ठीक है, आंखों से मामला शुरू होता है और दिल से ट्रांसफर होता है फिर। अच्छा, उनमें से एक जो है ना वो खास जो थी, वो एक औरत से जब उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या लगा है इस मर्द के सामने, मर्द था कोई आया हुआ माइग्रेट करके किसी और मुल्क से, क्या जो जो आजकल रेफ्यूजीज का मामला बना हुआ है, वो रेफ्यूजीज में से था कोई पुराना, या काफ़ी साल पहले की बात है, लेकिन है वो रेफ्यूजी था वो। ना वो ज़ुबान जानते हैं, ना उनका कल्चर एक है, कुछ भी नहीं, सिमिलर कुछ भी नहीं है उनके अंदर। वो औरत कहती है मैं तो अब ये इस बात का इंतजार कर रही थी कि अगर ये मुझे कहे ना तुम मुझसे शादी कर ले, तो मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ। अंदाजा कर सकते हैं आप कि इसकी इसकी ताकत कितनी है। अब बात ये है कि किसी के सीने में जो होगा वही जाएगा ना, वही जाएगा। तो जो बंदा बैठ के अल्लाह अल्लाह करता रहेगा तो वो किसी आंखों में देखेगा तो उसके अंदर अल्लाह अल्लाह का नाम जाएगा। तो ये है तवज्जो, ये है तवज्जो। अब ये तवज्जो वाला काम छोड़ दिया गया है। मैं आपको बताऊं ये छूटा कैसे है, आप हैरान होंगे। हजरत मुजद्दद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मेहनत की वो ऐसा रंग लाई थी कि 5 लाख से ज़्यादा औलिया अल्लाह उनके सिलसिले में थे। जब ये गोरे गए हैं ना वहाँ, इन्होंने 5 लाख से ज़्यादा औलिया अल्लाह को वहाँ पर शहीद किया है, 5 लाख से ज़्यादा। अभी इस वक्त जो है ना 5 लाख तादाद नहीं है उलमा की भी, औलिया तो छोड़ें, उलमा की भी तादाद नहीं है 5 लाख इस वक्त दुनिया में, 5 लाख से ज़्यादा। और इनको पता लग गया था असल में कि जो मुर्दा बंदे हैं ये भी जिंदा हो जाते हैं, इनके अंदर भी आग लग जाती है। ये आस्थानों पे जाते हैं तो उनको मुर्दा होता है, उसके ख्यालात अजीब से हैं, उधर जाता है वो भी बंदा बन जाता है, वो भी अल्लाह वाला बन जाता है, उसके अंदर भी वही ज़ोर शोर शुरू हो जाता है जो दूसरों के अंदर है। ये बड़ा अजीब मामला। अब इनको पता चल गया था तो इन्होंने फिर टारगेट किया है कि जो 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 खून है ना गर्दिश करता हुआ, ये हमारी जिस तरह नसों में खून जाता है, ये खून जो है मोहब्बत सप्लाई करने वाले और जज्बा सप्लाई करने वाली ये खानका थी, ये खानकाएँ थी। तो ये इसलिए वो ख़त्म किया गया। तो फिर जो है वो एक सिस्टम के तहत जो है हमारी जो नस्ल है उसको बिगाड़ा गया आस्ता आस्ता। इसका रिज़ल्ट आज ये है कि बहुत सारे बंदों को कोई नहीं पता कि वो मामला अब क्या था कि वो किस तरह उन्होंने किया कि और तवज्जो से हर मामला को तवज्जो से करते थे, जो बंदों को बुलाते थे, जिक्र देते थे, तवज्जो करते थे, फिर साथ साथ शरीयत के मामला उनको सिखाते थे। नक्शबंदी सिलसिले में ख़ास तौर पर शरीयत की पाबंदी है। और कादरी सबक की तरफ चलें तो कादरी सबक भी लताइफ के ऊपर है, सोहरवर्दी सबक भी लताइफ के ऊपर है, चिश्ती सबक भी लताइफ के ऊपर है। अब आप किसी चिश्ती से जाकर पूछ लेना, बताओ हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती जी मेरे रहमतुल्लाह सबक किस तरह करते थे, वो नहीं बता सकते, करेंगे तो बताएंगे। तो अर्ज करने का मकसद है, बात ज़्यादा लंबी मैं नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये अगर ना बयान की जाए तो फिर वो अंदर बात रह जाती है। लेकिन इंशाल्लाह अगर कोई सवाल किसी से हो हमसे पूछ सकते हैं। सोहेल साहब से पूछ सकते हैं। सोहेल साहब बड़े नॉलेजेबल बनते हैं, ये बड़े नॉलेजेबल बंदे हैं, और ये जो है ना आजिज़ मजाज है, ये बार बार उधर बैठने की वजह से मैं कहता हूँ आप प्लीज़, ये आपका मनसब है, हम पीर भाई हैं, हम इनको सपोर्ट करने के लिए आएंगे, लेकिन ये इनका मनसब है। अब ये इनका काम है कि ये जो दोस्ती है ना, इसको ये कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, ये दोस्ती जो है ये कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, क्या ख्याल है? अब इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ, कहाँ तक का क्या मकसद। जो आपको पता है क़यामत के दिन माँ बाप भूल जाएंगे, रिश्तेदार भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, माँ बाप पास भी खड़े होंगे, कोई परवाह नहीं करेगा। ये आम बंदों की बात है, ये आम बंदों की बात है। खास बंदों की ये बात है कि वो अपने मुर्शिद के साथ मौजें कर रहे होंगे। इसकी मिसाल मैं आपको मुख्तरन हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती जी मेरी रहमतुल्लाह अलैह, जब उनके एक पीर भाई दुनिया से पर्दा फरमा गए, कब्र पर तशरीफ़ फरमा हुए मोइनुद्दीन चिश्ती जी मेरी रहमतुल्लाह अलैह,
मुराकबा किया, आंखें बंद की और देखा। मुझे तजस्सुस हुआ कि मेरा पीर भाई है, सब जनाजा करके दफना के चले गए हैं। जो ही वो आगे गए ये वापस बैठ गए। तो कहते हैं मुझे तजस्सुस था कि मेरा पीर भाई है, अल्लाह खैर करे इसके साथ क्या मामला पेश आएगा। तो फरमाते जब मैंने आंखें बंद की, देखा उधर से फरिश्ते आ रहे हैं जो सज़ा देने वाले फरिश्ते हैं, सज़ा देने वाले फरिश्ते आ रहे हैं। कि मैंने देखा, मैं घबरा गया, थोड़े फिक्रमंद हुआ कि ये मेरा पीर भाई है, अब मैं कौन सा ऐसा काम करूं कि ये बच जाए इससे। कहते मैं इस सोच में ही था कि एक तरफ से हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले आए, उनके जो मुर्शद हैं वो एक तरफ से तशरीफ़ ले आए और आके फरिश्तों को कहते हैं रुक जाओ, इसको कुछ मत कहना, ये मेरा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फरमाया ये मेरा है, इसको कुछ मत कहना। फरिश्ता बोला, कहता है हुजूर ये तो आपकी बात नहीं मानता था, ये तो आपके नक्शे कदम पर नहीं चलता था। फरमाया ऐसा ही है, लेकिन इसकी एक आदत बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ी अच्छी आदत थी इसकी। फरमाते हैं कि इसने मेरा दामन बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था, ये इसने हाथ से नहीं जाने दी, इसलिए ये मेरा है। गैब से आवाज़ आई कि ये जो शख्स है इसको हमने ख्वाजा उस्मान हारूनी के हवाले किया। फरिश्तों तुम हट जाओ, ये इसका हुआ, इनके हवाले कर दिया, इसको हवाले कर दिया, ये ले जाएं बरज़ख में आप। क्योंकि देखें ये लोग बादशाह हैं, इस दुनिया के भी बादशाह हैं, बरज़ख के भी बादशाह हैं अल्लाह वाले। तो मैं कि ले जाए इसके साथ, इनके साथ। तो हमारे मुर्शिद अक्सर ये बात फरमाया करते थे कि आप लोगों को इस बात की समझ नहीं है, ये जो आज हम कर रहे हैं ना, और नफ्स पे बाज़ औक़ात बोझ आता है कि हर वीक हम जा रहे हैं बैठ के जिक्र कर, वो मैं ये गेम जो हम, ये जो खेल हम तैयार कर रहे हैं, ये बरज़ख का खेल है। हमारे पीर मुर्शिद अक्सर ये बात फरमाया। तो ये है कि जो दोस्ती हमारी यहाँ है, अगर हम इसी तरीके से बैठ के आलम बरज़ख में भी यही बातें करते हों, अल्लाह का जिक्र करते हों, तो फिर कैसी ख़ास बात हो। तो ये जो है फिर ये ऐसे ही होता है कि जिनसे तवज्जो लीजिए। अब देखें रसूल ने फरमाया जिनसे तुम मोहब्बत करोगे तुम उनके साथ उठोगे, जिनसे मोहब्बत करोगे उनके साथ उठोगे। तो जब लोग जिनको ये बात फरमाई, उन्होंने कहा मैं हुजूर ऐलान कर दूं बाहर जाके। उन्होंने जाकर बाहर ऐलान कर दिया, लोगों मदीना में खुशी ईद का दिन बन गया वो कि रसूल ने ये बात फरमाई है। अब देखें ये जो सिलसिला होता है ना, सिलसिला असल में मुहिब और महबूब का ये जो रिश्ता है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुहिब और महबूब का रिश्ता, अब वो रिश्ता हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अब वही रिश्ता जो है आगे सलमान फारसी रज़ियल्लाहु का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ, वही रिश्ता आगे हज़रत इमाम कासिम जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे हैं उनका आगे मुहिब और महबूब। अब ये जो पीर मुरीद वाला मामला होता है, असल में ये तो मुहिब और महबूब वाला मामला होता है। तो आप जिससे मोहब्बत करेंगे वो आपके साथ जाएगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये जो अल्लाह वाले हैं इनको कोई गम खौफ नहीं हो, ना है ना होगा। ये जो होगा वाली बात है ना, ये असल में क़यामत के दिन की बात है। कि क़यामत के दिन अगर कोई मेरा बंदा जो है वो इस बात से उदास होगा कि ये मेरा था, ये ये बंदा जो है दोज़ख की तरफ जा रहा है, तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं इनको परेशान नहीं होने दूंगा, ये जिसको हाथ रखेंगे वो साथ जन्नत में जाएगा। चलो जिसको हाथ रखेंगे वो साथ जाएगा, उनको अल्लाह ताला उनको गमगीन तो नहीं होने देगा। तो ये है असल में मामला कि हम ये जो रिश्ता है ना, हम इसको अल्लाह रसूल के लिए और ज़्यादा गहरा कर लें, इस रिश्ते को हम और गहरा कर लें और हम यहाँ बैठ के अल्लाह का जिक्र करें, अपने सीनों को मुनव्वर करें, तो रब कल हमें भी ये इजाज़त दे दे कि जाओ सैर करो, बरज़ख की सैर करो। तो फिर वो होंगे असल दिन। बाज़ लोगों के लिए है कि वो सो जाएंगे और क़यामत के दिन उठेंगे। जो ख़ास हैं वो सैर करते हैं, वो काम करते हैं, वो ज़ियारतें करते हैं, जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाके बैठते हैं। तो वो मामलात होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा रिश्ता है ना, ये अबदी हो जाए, हमारा वो मामला ना हो कि हम क़यामत के दिन गए हो मैं नहीं जानता तुझे, ना इकट्ठे होंगे एक झंडे के नज़दीक। एक और
बात ज़्यादा तो नहीं, आप मुझे रोक देना प्लीज, अगर मैं आप तंग पड़ गए ना, आप तंग पड़ के मुझे कह देना, मैं चुप कर जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी खास बात है, क़यामत की बात है, ये तो मेरा दिमाग उस तरफ चल पड़ा। जब क़यामत का दिन होगा ना, तो कुरान पाक में है कि नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, यानी कि हर बंदा कहेगा मैनू मेरी पई भाई, तू हट जा, मैनू मेरी पई है, हर बंदा ये काम कहेगा। ये आम लोगों की बात मैं अभी पहले बताने लगा हूँ। आम लोग क्या करेंगे, जब वो उठेंगे ना क़यामत के दिन, तो भगदड़ मची होगी हर तरफ, समझ नहीं आएगी कि हम क्या करें। तो कोई कहेगा कि चलो यार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं, वो जो है वो बाप हैं बनी नूह इंसान के, अल्लाह के नबी भी हैं, बनी नूह इंसान के वो बाप हैं, उनके पास चलते हैं। तो जब वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो वो कहेंगे नफ्सा नफ्सी, मुझे अपनी पड़ी है, तू जा, तू आगे चला जा। वो लोग जी सुना, जब लोग इकट्ठे हो गए, वो इतना मजमा इकट्ठे हो गए, जब उनके पास जाएंगे तो वो कहेंगे मुझे अपनी पड़ी है, तू जाओ आगे उस नबी के पास चला जा, फलां के पास चला जा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास। वो फिरते फराते फिरते जाएंगे, वो हर नबी उनको कहेगा मुझे अपनी, मैं, तू जा आगे जा। ये करते 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 ये सिलसिला आएगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे फरमाएंगे वो आखिरी नबी वहाँ चले जाओ। जो उनका दुनिया में काम था खुशखबरी देना, वही क़यामत के दिन उन्होंने दोबारा खुशखबरी लोगों को देनी है कि वो आका है, उधर तशरीफ ले जाओ। तो ये जो सफ़र है ना, 50,000 साल का दिन होना है, मतलब वो बड़ा लंबा सफ़र के। अब ये देखे ना, 1,24,000 पैगम्बर हैं, तो अगर कमो बेश, अब वो यहाँ से वहाँ और एक सैलाब हो बंदों का, वो सैलाब कभी उधर जा रहा है तो कभी उधर जा रहा है, तो कितना इसमें टाइम लगेगा। अब एक बंदा बैत फर्क, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं अपना जो शजरा है ना, मैं अपने पीरो मुर्शिद के साथ जो मैं लिंक हूँ, मैं अपना शजरा देखता हूँ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे दरमियान जो हस्तियाँ हैं उनकी तादाद है 36, उनकी तादाद है 36। अब 36 के ज़रिए मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाऊँ तो वो ज़्यादा आसान है, या मैं वो करूँ काम कि मैं सबके साथ पहले एक नबी के पास, फिर करते 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 जब जिससे मोहब्बत करनी है उसके साथ उठना है। तो इसका मतलब है कि आप देखें हम कितने बंदे बैठे हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 14 42 3 गुना बंदे, इतने बंदे हैं कि हम उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं। तो ये है असल में जो पीरी मरीदी वाला जो मामला था, वो असल में ये मामला था। अब हमने इनका साथ भी देना है इंशाल्लाह, कि ये जो इनको सीने में नेमत मिली है, ये नेमत बड़ी ख़ास है। इसका भी तो मैं वक्त आपका नहीं लेता, टाइम बहुत कम है। ये आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, इनको बिठा के इस कहीं तवज्जो दें हमें। ये मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी को कहेंगे, क्योंकि मैं आपको कहा ये बड़े मिटे हुए, बड़े जो है ना आजिज़ मिजाज किस्म के बंदे हैं, लेकिन आप इनको पकड़ के कहें मुझे तो हमें तवज्जो दें। आपको पता तो चल गया कि ये क्या चीज़ है, आप इनसे कहें मुझे। मैं लंदन में था, जब मुझे पता चला ना, मैं उधर रहता लंदन था, एक बंदा मुझे मिला ब्रैडफोर्ड की तरफ, तो वो सैफी था, मुझे इस चीज़ का पता था। मैं उधर कॉलेज सिक्योरिटी करता था, अजीब मामला थे, दूसरे टाइप लाइन थी। मैंने उनसे कहा, मैं क्या आप इतनी दूर हैं, आप कभी बर्मिंघम हो ना, तो मैं लंदन से सफ़र करके आपके पास आ जाऊँ, आके तवज्जो लूँ। तो मुझे अंदाज़ा था, मुझे पता था कि ये चीज़ बंदे के साथ करती क्या है। तो मैंने कहा मैं आपके पास सफ़र करके आ जाऊँ। उन्होंने कहा सफ़र करने की क्या ज़रूरत है, उधर है ना। उन्होंने मेरे पीर साहब को मुझे नंबर दे दिया। तो पीर साहब ने मुझे इवेंचुअली ये हुक्म फरमाया कि शाह साहब आप वहाँ से छोड़ के लंदन छोड़ के बर्मिंघम चले। तो ये है कि फिर मैं जब पकड़ा ना, फिर मैंने नहीं पीछे नहीं हटा। मार तो बड़ी पड़ी, लेकिन मैंने पीछे नहीं हटा। मैंने कहा ये ठीक है, आप समझ ला के जब पता लग जाए तो फिर मेरा ख्याल है उस नेमत को हासिल करने की भी कोशिश करनी चाहिए। इनको पकड़े कि भाई बातें बाद में करें, पहले मुझे बिठा के यहाँ तवज्जो करें। ये मुझे भी चाहिए, हर बंदे को ये चाहिए। ये चीज़ है जिसके साथ जो एक तो सबसे बड़ी बीमारी पता क्या है, हमारा जो ताल्लुक़ है ना दुनिया के साथ, ये बहुत गहरा है, बहुत गहरा। वो अकेले ये नहीं टूटता। अगर मैं खुद अकेला कहूँ ना कि मैं तोड़ दूंगा इस दुनिया से ताल्लुक़, नहीं टूटता।
ये कोई तड़वाने वाला होता है जो तड़वाता है। अब ये जो पहले लतीफ़े पर जब तवज्जो होती है ना, सबसे पहला काम ये होता है कि आपको दुनिया के साथ ताल्लुक़ कटना शुरू होता है, क्योंकि ये लतीफ़ा कल्ब है ना, जो इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ नफ्स के साथ है, अंदर ये जुड़े हुए हैं, इन्फ्लुएंस करता है इसको। नफ्स जो है वो देखता है कोई चीज़, कहता है मुझे ये अच्छी लगती है, इसको बताता है, ये उससे मोहब्बत करने लग जाता है, गलत चीज़ से मोहब्बत करने लग जाता है। अब इसी को आप छुड़वा दें, इसको अल्लाह के नाम की ज़रूर लगवानी शुरू कर दें, अल्लाह का नाम इसके अंदर जाना शुरू होगा, ये नफ्स को कहेगा तू पीछे हट, ये ठीक है मेरे लिए। तो फिर ये नफ्स और ये जो असल में जो वजाहिदू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना, ये मामला फिर उस वक्त शुरू होना है, ये फिर शुरू होना है। तो अल्लाह समझ अता फरमाए। और जो आप कर रहे हैं, आप आते हैं, नाते पढ़ते हैं, इसके साथ साथ ये काम करें कि किसी सूरत जो है ये जिक्र ना छोड़ें। ये आपको इंशाल्लाह तरीका बताएंगे बिठा के। अभी आज की महफिल थोड़ी सी डिफरेंट रंग में हो गई है, लेकिन चलें आज के लिए हम समझ लें तो काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम हम बैठ के ये सीखें कि हमने किस तरीके से जिक्र करना है, और फिर ये मामलात ये तो तवज्जो लें, जितनी ज़्यादा तवज्जो लेंगे, आप हमें नहीं कहना पड़ेगा, आप हमें बताएंगे कि क्या हुआ है, सुभान अल्लाह। कि आप हमें बताएंगे कि नहीं नहीं आप इस तरह करो, ये देखो कितना फ़ायदा है। और कुछ चीज़ देखें ना, गाड़ी में चलाता हूँ ना, मैं बस चलाता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि बस उसके मनूवर्स किस तरह करते हैं, क्या मामला है, क्या नहीं, क्या ख्याल है, मेरा एक्सपीरियंस है ना। तो ये है कि जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर किताब नहीं पढ़नी पड़ती, आप खुद लोगों को बताएं, हाँ ये काम करो, ये देखो इसका फ़ायदा है, फिर ये मामला हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो आज की महफिल में मेरी आप लोगों से सिर्फ यही दरख्वास्त है कि ये अपनी तरफ आप खुद तो तवज्जो लें इनसे, लेकिन ये अपने तक महदूद ना रखें, अपने बच्चों को भी, ये बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। बच्चे बच्चियाँ, हर औरतों का तो फ़िलहाल नहीं यहाँ पर सिलसिला, कभी और खुलफा कोई होंगे तो फिर बाद में, लेकिन ये कि आप कोशिश करें आपके बच्चे यहाँ आएँ, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ये कुरान पाक का हाफिज़ बन जाए, अंदर से शौक़ उसके कुछ और हो, इंशाअल्लाह हाफिज़ बन जाए जो, और शौक़ अंदर से कुछ और हो, तो फिर उस हिफ्ज़ का क्या करेगा बंदा। कई हाफिज़ हमने देखे रोते हुए, कई हाफिज़ देखे जो उन्होंने पढ़ के बुला दिए, क्योंकि ये ठीक नहीं था। इसको ठीक करेंगे तो ये खुद रास्ता दिखाएगा कि ये काम भी कर, ये फ़ायदे वाला, ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर। जी हाँ। तो हम दिलों को बेहतर करने वाली महफिल जो है ये रखा करें। ये जो हमारी संगत है, हमारी जो एक ताल्लुक़ है एक दूसरे का, इससे ये फ़ायदा हो कि हम बैठें, अल्लाह अल्लाह करें, अपने दिलों को मुनव्वर करें, और अपने जो आगे पीछे हैं उनको भी ख्याल रखें, उनको भी बताएं कि ये इस तरह जिक्र करना है, इस तरह में। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके बगैर हम गुजारा कर सकें। बंदे कहते हैं यार वो कोई नहीं यार, ये तो चीज़ वो फ़र्ज़ बाजू वाली बात आ जाएगी। तो लोग कहते हैं ये भी है, वो भी है, ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है, तो चॉइस है हमारे पास। चॉइस किस चीज़ की है आपके पास? अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे पास चॉइस है, लेकिन साथ ये भी बताया कि बुरा करोगे तो जहन्नम है। तो फिर चॉइस कौन सी है? मैं कहता हूँ जो हमारा दीन है ना, ये वन वे स्ट्रीट है, लेफ्ट राइट भी नहीं कर सकते, पीछे भी नहीं जा सकते, रुक भी नहीं सकते, रुक भी नहीं सकते। इसमें हमने आगे ही आगे जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन वो है जिसका हर आने वाला दिन पहले से बेहतर हो। तो वो बेहतर कैसे होगा? किताबें ज़्यादा पढ़ने से बेहतर होगा। जो जो अल्लाह के नाम की ज़रूरत होगी ना। अब एक आखिरी बात बता दूँ, फिर इंशाल्लाह हम क्लोज करते हैं। अब आखिरी बात, जब ये कल्ब ज़ाकिर हो जाता है ना, इसकी ये खासियत है कि ये ज़ाकिर हो जाता है। इतना ज़ुबान हम बोल रहे हैं, ये ज़ाकिर हो जाता है। अल्लाह के नाम से ही ज़ाकिर होता है, और किसी चीज़ से नहीं होता। सिर्फ अल्लाह 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 का नाम ज़रूर लगाएंगे, उससे ज़ाकिर होता है। अब जब ये ज़ाकिर होता है ना, तो ये करता रहता है। आप चाहे सो जाएं, आप सो जाएं, वो जिक्र करता रहेगा। ज़ुबान ये काम नहीं कर सकती। ज़ुबान आप बोल रहे हैं तो खामोशी हो गई, जिक्र ख़त्म हो गया, खाना खा रहे हैं, सो गए, ख़त्म हो गया। ये नहीं ख़त्म होता। और हर दिन हर लम्हा इस जिक्र में जो गुजरता है ना, वो दर्जात की बुलंदी पहले से वो बेहतर से बेहतर से बेहतर से बेहतर होता जाता है। वो वरफ़अना लका ज़िक्रक वाला मामला पढ़े ना, वो समझे ना,
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آج بھی بلند سے بلند بلند سے بلند بلند سے بلند ہوتا جا رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے صدقے جو ان کے یار ہیں ان کے بھی ذکر بلند سے بلند بلند اور ان کے درجات بلند سے بلند بلند سے بلند ہوتے جا رہے ہیں. جب بندہ اس معاملے میں پڑ جاتا ہے نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آہستہ آہستہ بہتری سے بہتری سے بہتری آتی جاتی ہے. پھر یہ حدیث شریف جو اس کا مصداق بنتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ سیکھیں، خود بھی سیکھیں، خوب ذکر کریں اللہ کا، اور یہ کمائی جو ہے پھر ہم آخرت کے لیے جمع کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. وما علینا الا البلاغ. باقی میرا حالہ کہہ دیا آج کے لیے. مجھے اور بھی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں اتنا کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ پھر ہمیں بھول جائیں.